अगर ईशान्य में है तो आपके जीवन में सुसाइडल टेंडेंसीज तक बात पहुंच सकती है। But what about if people are living in a, south facing direction? वी आर यूजिंग एस्ट्रो वास्तु टुगेदर। So अगर वास्तु दोष है तो वो रेक्टिफाई हो सकता है. व्हेन यू आर स्लीपिंग, Yeah. whatever part of your body is reflected in the mirror, that will have in the long run. That is sure. So mirrors are the portals Yeah. to another dimension. Yeah, तो exactly. बहुत ही अलग चीज है वो। या मैं नहीं चाहता कि हमारे श्रोतागण जो हैं वो किसी वहम में पड़ के डर जाएं। I want them to be educated rather than being misguided. People, there are so many people like family members in the house. So for one of the family member that might not be good, the vastu of the house. For other, it could be good. Or one would be having a good dasha, other would be not having Wonderful so question. good dasha. Today we have on our show a celebrated Vastu astro and numerology expert, a spiritual guru, a healer, holding a doctorate in Vastu and astrology. A World Book of Records and Global Book of Excellence awardee. He has been featured on leading TV channels, newspapers, and magazines for his transformative work. His expertise spans Vastu, numerology, palmistry, graphology, Reiki healing, angel therapy, tarot, runes, Akashic Records therapy, and the pioneering Himalayan yogic healings. Traveling globally for consultations, lectures, and workshops. Dr. Keshwani is also known for designing lucky visiting cards and progressive logos for builders, businessmen, and corporates, blending ancient wisdom with modern applications to guide people and organizations towards success, harmony, and spiritual growth. So today's guest is so special that there's a long introduction and there's so much to tell about him that I thought I would read it from my mobile so that I don't miss on any point. So enjoy this lovely episode on the Arpita Thakkar Show. Sir, you hold a doctorate in Vastu and astrology. What drew you initially in those spiritual sciences? See, अर्पिता जी, the thing is that लाइफ में कोई ऐसा समय आता है, कोई ऐसा पड़ाव आता है जब आप उस चीज को चाहें या ना चाहें, आप स्पिरिचुअलिटी की या अध्यात्म की ओर खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स मेरे लाइफ में हुए थे। जैसे मैं मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता था, एमबीबीएस डॉक्टर। आई वाज अ टॉपर इन स्कूल, कॉलेज एंड ऑल दैट। माय फादर वाज अ वेरी बिग बिजनेसमैन, हैविंग लॉट्स ऑफ ट्रक्स एंड ऑल। तो सडनली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए और मेरे गुरुजी जिनको हनुमान जी की सिद्धि थी, जब मैं एग्जाम्स दे के आया था, आई न्यू के आई विल बी शाइनिंग थ्रू विद द रिजल्ट्स। बट एक होता है ना, जिज्ञासा होती है कि आई हैव टू नो वेदर आई विल बिकम अ डॉक्टर और नॉट। तो ही सॉ माई हैंड। एक्चुअली ही वॉज नॉट अ पामिस्ट, ही हैड सम सिद्धि हनुमान जी की, जिससे बहुत कुछ वो बताते थे। And he never used to charge a single paisa because he was also very rich. He was having his own factories, सब कुछ था उनके पास। भगवान की बहुत कृपा थी उनके ऊपर। तो ही सेड, विजय, शुड आई टेल यू द ट्रूथ? तो मैंने बोला यस। पहले थोड़ा इंसान जैसे नॉर्मल कोई भी होता है तो डर तो जाता ही है कि ऐसे क्यों बोला उन्होंने, कि सच बताऊं कि झूठ बताऊं। तो आई सेड नो, ट्रूथ वॉट एवर इट इज। ही टोल्ड मी कि यू विल नॉट बिकम अ डॉक्टर नाउ, in future, in some year you will become, but now you will become a healer, you will go towards spirituality। तो मैंने उनके चरणों में पढ़ के और मैंने बोला, गुरुजी मुझे ना बाबा बनना है न गुरुजी बनना है। तो उन्होंने कहा कि बहुत ही हल्की स्माइल से कि तुम्हारे जीवन का जो पर्पस है उसने तुम्हें ढूंढ लिया है, तुम इसी में जाओगे। एंड मैं फिर भी आई वॉज नॉट टू मच कन्विंस्ड। भले मेरे गुरुजी थे, टू मच कन्विंस इन द सेंस, मैं ये बोल रहा था कि जिस चीज़ को मैं बचपन से सोचता हूँ कि मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, बाद में फिर एमडी कौन से भी फील्ड में बनूंगा जो मुझे उस वक्त प्रेरित करेगी। तो उस वक्त ये हुआ कि
मैं एनआईटी या इस तरह के कुछ कंप्यूटर कोर्सेज ज्वाइन करता हूँ। उस वक्त उस तरह के कोर्सेज एपटेक, एनआईटी बहुत चलते थे, तो वहाँ पे कोई अच्छा कोर्स करके एंड आई विल गो टू द फॉरेन लैंड। आई विल बी अ टोटल कॉर्पोरेट गाय और आई विल बी वर्किंग इन सम मल्टीनेशनल कंपनी ऑल्सो। पर वो कहते हैं ना कि जो कुछ प्रारब्ध में है, जो विधाता ने लिखा है, तो वो आपके साथ होकर ही रहता है। सो देयर वर सम इंसिडेंट्स व्हिच हैपेंड, दे आर टू पर्सनल, तो इसलिए पूरा मैं नहीं बता पाऊंगा। पर उससे मुझे ये समझना था कि जब ज्योतिष में हम कहते हैं कि 45 इयर्स के बाद काल सर्प योग का जो इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है, तो मेरे पापा को 47.5 ईयर में क्यों हुआ, उनके साथ जो भी धोखा हुआ, उनके साथ जो भी चीज़ें हुई, वो क्यों हुई, दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। और दूसरा ये था कि जहाँ पे हमने शिफ्ट किया था, दैट पर्टिकुलर स्पेस वाज वेरी गुड, द पर्टिकुलर फ्लैट, द पर्टिकुलर बिल्डिंग बहुत ही बढ़िया थी। पर उसके बावजूद उस घर में आने के बाद में बहुत सारा धन हमारा व्यय होता था, वेस्ट ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ यू कैन से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज स्टार्टेड कमिंग टू अस। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि ऐसे क्या हो गया है कि ये घर बहुत अच्छा है, पहले से भी बेटर है, लेकिन उसके बावजूद हमें ये परेशानियां क्यों हो रही हैं। तो उस वक्त आई वॉज ट्रैवलिंग टू अहमदाबाद फॉर सर्टेन वर्क, और वहाँ पे कोई एग्जीबिशन लगी हुई थी एंड देयर वाज अ वंडरफुल पर्सन who was I think into 80s and 90s, senior citizen थे, and he was very knowledgeable वास्तु कंसल्टेंट। तो पहली बार मैंने वास्तु शब्द वहाँ पे बोर्ड पर देखा था किसी पर्टिकुलर इवेंट में। तो मैंने and it was totally free guidance over there, so that attracted a lot. When was it? How Many years, long? I can't say, it is around, say, something around 97, 99, something like that. तो क्योंकि वो पर्टिकुलर मतलब वो चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी, मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि जो मेरे जीवन के परेशानियां हैं वो क्यों हैं और मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो इस वजह से मेरा इंटरेस्ट उसमें जागा। उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि अपने घर का मैप बनाओ, दिस इज अ फ्री कंसल्टेशन, आई विल गाइड यू कि क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि आई विल नॉट बी स्पेंडिंग टू मच अमाउंट बिकॉज आई वाज डूइंग सम जॉब्स एट दैट टाइम, क्योंकि पापा के साथ धोखा हुआ था, तो उनका सब कुछ प्रॉपर्टी वेंट एंड आई लेफ्ट माई MBBS, जैसे मेरे गुरुजी ने कहा था, वो खुद ब खुद छोड़ दिया था। इट वॉज नॉट अ सर्टन इंसिडेंट या कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम, बट इट केम ऑन माई ओन कि ये छोड़ना है और कुछ करना है, बट वॉट, दैट वॉज अ क्वेश्चन। तो देर वॉज इनर कॉलिंग के ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना है। तो वो पर्सन ने मुझे मैप पर बताया, द वास्तु कंसल्टेंट, कि आपके यहाँ ये पर्टिकुलर सेक्टर्स मिसिंग है। जैसे ईशान्य कोण थोड़ा सा कट था लिफ्ट एरिया में, थोड़ा सा पोर्शन था टॉयलेट सेक्शन। तो जो जगह में ईशान्य कोण में आप अपने देवी देवताओं को बिठाते हो, मंदिर बिठाते हो, वहां पे बृहस्पति विराजमान है। तो जब बृहस्पति खराब होगा किसी भी तरह से आपके वास्तु में, नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में टॉयलेट सेक्शन होगा या कट होगा, तो अगर आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स एंड वास्तु कंसल्टेंट्स के बुक उठा के देखेंगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अगर ईशान्य में टॉयलेट है तो आपके जीवन में सुसाइडल टेंडेंसीज तक बात पहुंच सकती है। And it can be because of money issues, it can be because of stress in your work, it can be because आपके relationships will not be good, it can be because of no happiness within you, like आपका हेल्थ खराब रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, आप उसको डायग्नोस भी कराओगे, आपकी सब टेस्ट नॉर्मल आएंगी, लेकिन फिर भी आप बीमार हो। सो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और उस बुक में तो ऐसे भी एक मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें लिखा है कि ईशान्य कट मतलब भाग्य कट। तो मैं उस व्यक्ति से भी, उस पर्टिकुलर वास्तु कंसल्टेंट और एस्ट्रोलॉजर को भी मिला जिन्होंने कुछ 180 के ऊपर बुक्स लिखे थे। तो एक ज्योतिष सम्मेलन के दौरान मैं उनसे भी मिला था। तो मैंने उनको कहा कि हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर जोन नहीं है तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, और अगर ऐसे है तो हम इसको कुछ कर क्यों नहीं सकते हैं। मैंने माना कि जो वेद शास्त्र हैं वो सही हैं 200%, उसको तो उसमें कुछ
मतलब कुछ डिस्कस करने वाली बात ही नहीं है। वेद शास्त्र है, योगियों द्वारा लिखे गए हैं, तो उसके अंदर सच्चाई है। वो आज प्रूव हो रहा है। इट इज़ अ पैरानॉर्मल साइंस, साइंस बियॉन्ड साइंस। वो धीरे-धीरे गुत्थियाँ सुलझ रही हैं। लेकिन इट विल टेक टाइम फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड। तो लेकिन हम इसके लिए कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं, वो मुझे जानना था। जैसे कोई भी वेद शास्त्र, चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, वास्तु शास्त्र हो या कोई और शास्त्र हो, वो हमेशा राइट होता है। उसको प्रैक्टिस करने वाला गलत हो सकता है। The practitioner can be wrong. The practitioner may do some errors, mistakes in the calculations. वो हो सकता है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि ज्योतिष गलत है, वास्तु गलत है। कुछ लोग उसे बदनाम कर रहे हैं अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए। उसमें हम उनसे ना तो डिस्कशन करना चाहेंगे, ना ही तो हम उसमें पढ़ना चाहेंगे। क्योंकि मैं हमेशा, अगर मुझसे कोई पूछता है कि अभी आप इस पर्सन को जानते हो, आप इस कंसल्टेंट को जानते हो, मैं बोलता हूँ, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। मैं अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। वो अगर मेरे पास अपने प्रॉब्लम्स लेकर आया है, तो उसके सॉल्यूशंस मैं उसे दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। चाहे मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में है या ग्लोबल बुक ऑफ एक्सीलेंस में लंदन में मुझे नवाजा गया है। यहाँ तक कि मुझे इस साल का भी 2025 का बेस्ट सेलिब्रिटी वास्तु एस्ट्रो अवार्ड अब कुछ दिन पहले ही एंटरप्रेन्योर्स के ग्रुप में मिला। लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड आपके लिए क्या होता है? योर क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। आपके Of पास course, जो yeah. पर्सन आ रहा है वो पेशेंट की तरह ही है। आप अपने आप को उस वक्त ऐसे ही समझो कि वो अगर आपके पास किसी विश को रख के आया, किसी इच्छा को रख के आया, वो आपके पास पहले तो आया क्यों है? कि उसके जीवन में कुछ परेशानियां हैं, इसके वजह से उसको हमें टैकल करना है। चाहे वो मनी इश्यू हो, रिलेशनशिप इश्यू हो, हेल्थ से हो या कोई और हो, बिजनेस रिलेटेड मैटर, या उसका जॉब चली गई है। तो पहले आप उसे समझो कि कैसे प्रॉब्लम है, उसका तोड़ निकालो, गो टू द रूट कॉज। और मैंने ये देखा है कि बहुत जो दिग्गज बन जाते हैं, अपने फील्ड में माहिर बन जाते हैं, मुझे भी 30 साल प्लस हुआ है। वास्तु महापाध्याय और महर्षि के अवार्ड्स पहले ही मिल चुके हैं बचपन से ही। लेकिन क्योंकि मैं 16 साल से स्टार्ट हुआ हूँ इसमें, इस फील्ड में, टुडे आई एम That's ऑलमोस्ट really 50 या। तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट अवार्ड है, मुझे सिर्फ एक पुश देने के लिए कि विजय, यू हैव सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज मोर। that's नेम right. एंड फेम तो मिलेगा मैम, वो तो सोशल मीडिया को कोई परचेस करके भी कर सकता है। नेम एंड फेम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने पास आए हुए व्यक्तियों के प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो इसीलिए आई एम मोर इंटरेस्टेड कि जब मेरा क्लाइंट मुझे टेस्टिमोनियल भेजता है कि सर माय दिस वर्क इज डन, मेरे स्टूडेंट्स भेजते हैं कि दिस वर्क इज डन, आई एम मोर हैप्पियर। दैट इज मोर देन एन अवार्ड और अ गोल्ड मेडल और वट एवर। ये जो है वो सिर्फ पेपर तक रहेंगे, उससे सामने वाले को कोई सरोकार नहीं है। आपको That's सरोकार very है किसी true. भी कॉमनर के पास, या जो भी आपके पास दुखी आ रहा है या किसी कष्ट के वजह से आ रहा है, आप उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दीजिए। कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके, अगर आप बहुत सारे मोडालिटीज जानते हैं उनको इंटीग्रेट कीजिए, एंड प्लीज गिव सम रिलीफ टू द पर्सन। तो ऐसे ही मेरी जर्नी Yeah. स्टार्ट हुई थी। आई वेंट टू साउथ, मतलब मैंने उनको कहा था कि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो मैं आपकी रेमेडीज नहीं कर पाऊंगा। आई वॉज वेरी क्लियर विद देम। तो ही टोल्ड मी समथिंग ऑन द कलर थेरेपी, कि आप एटलीस्ट कर्टेन्स ये यूज करो, आप एटलीस्ट बेडशीट्स के कलर्स में ये पर्टिकुलर कलर ऐड ऑन करो। आप हैंकी ले रहे हो अपने साथ में, हैंकरचिफ, तो उसका कलर ये हो। और उन्होंने इस तरह से, ये आपके पिलो कवर्स जो हैं, बेदिंग टॉवल्स जो हैं, हैंड टॉवल्स जो हैं, वो तो आप कर सकते हो। So are you saying that Vastu comprises everything like colors also, यस including मैम, colors? यस मैम। मतलब मेरा And कहने का मतलब है कि वैदिक शास्त्र के अंदर संपूर्ण शास्त्र है। इसमें बहुत सारे फैसेट्स हैं। अब वो कैसे आता है ना, कि जब हम कॉस्मोपॉलिटन सिटी में हैं, आर्किटेक्ट और बिल्डर का काम ये होता है कि मैक्सिमम स्क्वायर फुट बनाकर बेचें। ठीक है, उसमें कहीं न कहीं कट कोना होगा, कहीं एक्सटेंशंस होंगे एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, कहीं पे एलिवेशन में कुछ पर्टिकुलर शेप होगा, जिससे आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर नहीं मिलने वाले हैं, जो एक आइडियल वास्तु की पहली पहचान होती है।
So before you start with this, even I want to ask you this question कि core principles क्या होते हैं वास्तु में? आप क्या देखते हो कि that makes a place and the space really वास्तु बेसिक friendly? अगर हम बेसिक वास्तु प्रिंसिपल्स की बात करें तो पहले तो जो प्लॉट या ज़मीन है वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में हो, उसके अलग अलग शेप्स ना हो, त्रिकोण, मृदंगाकार, हाफ सेमी सर्कल्स, ये सब ना हो। Okay. फर्स्ट रिक्वायरमेंट वो होती है। फिर होती है वाइब, आपको वहाँ पे एनर्जी कैसे महसूस होती है। सो यू हैव टू गो टू द प्लेस, उसके ब्रह्म स्थान पे जाके खड़े रह जाइए। ब्रह्मस्थान क्या होता है? आप ऐसे ऐसे टॉपिक्स छेड़ रहे हैं ना कि इन बिटवीन देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस पॉपिंग अप इन माय माइंड, सो आई एम जस्ट इंटरफियरिंग एंड आस्किंग। लोग बोलते हैं कि जस्ट स्टैंड इन द सेंटर ऑफ द हाउस, दैट इज योर सेंटर एंड दैट इज अ ब्रह्मस्थान। सो एक्चुअली इज दैट द वे एंड हाउ डू यू नो व्हाट इज अ सेंटर, व्हिच इज अ सेंटर? जब मैग्नेटिक कंपास लिया जाता है, उसको आप लेकर के अपने पहले दहलीज पे रखिए, जब मेन एंट्री, उससे आपको पहले एंट्रेंस पता चलेगा। जिस दिशा में आप बाहर जा रहे हो, दैट इज योर एंट्री। ओके। जहाँ पे आप एग्जिट कर रहे हो, सपोज यू आर गेटिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन, तो दैट इज योर एंट्री पॉइंट। अब ब्रह्म पॉइंट या ब्रह्म सेंटर या ब्रह्म स्थान कैसे ढूंढना है? अगर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर है तो इट इज वेरी इजी, सिर्फ डायगोनल्स को इंटरसेक्ट कर दीजिए तो जो पॉइंट मिलेगी दैट इज द ब्रह्म पॉइंट। वहां पे Okay. खड़े रह के आप उसी पर्टिकुलर जगह से जान सकते हैं कि मेरी जगह कैसी है। वहां पे कुछ रिचुअल्स किए जाते हैं जो हमारे वेद शास्त्रों में लिखे हैं, जिससे खड्डा खोदना होता है, उसके अंदर कुछ पानी भरना पड़ता है, फिर वो पानी एब्जॉर्ब हो जाता है या रह जाता है, तो उसके Okay. अनुसार पता चलता है कि ज़मीन कैसी है। या हमें वहाँ पे एक दिए जलाने होते हैं 5, उससे पता चलता है कि किस तरह की वहाँ की ऊर्जा है। ये पहले के प्राचीन मेथड्स हैं टू अंडरस्टैंड द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। And that is done in the Brahmasthan. दैट इज डन एट द ब्रह्मस्थान। ये अभी हम ब्रह्म पॉइंट की बात किए, दैट वाज जहाँ पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट होंगे वो ब्रह्म पॉइंट है। ये मर्म शास्त्र है, दिस इज द हार्ट सेंटर ऑफ वास्तु। अब उसके आसपास लेंथ एंड ब्रेथ वाइज कैलकुलेशन होता है कि ब्रह्मस्थान कितना बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक ले लेते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट स्पेस है, तो उसके अंदर लगभग 6 फुट विड्थ में और 8 फुट लेंथ में ये स्पेस ब्रह्मस्थान होता है, इतना। तो इसके अंदर अगर आप खड़े रह के एंड कैलकुलेट करते हैं, जगह को देखते हैं कि कौन सी पॉइंट्स मेरी ज़्यादा हैं या कौन सा कोना मेरे फ्लैट से, ऑफिस से, मॉल से, हॉस्पिटल से, फैक्ट्री से कटा हुआ है या बड़ा हुआ है, वो सब वहाँ पे पता चल जाएगा। एक बार वो एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलता है कि हमें आगे क्या करना है। Okay, and it's the same reason that entrance is very important of a house, like which direction and everything that is to be considered, or it means that every you say direction has it doesn't have any negative effect as such, but it does have some meaning to it. So how do you, when you suppose you are buying a flat or you're buying a house, so what do you decide? You decide on the entrance, like first, what's the first point to be considered? Is it the entrance? First is the entrance. So you will see whether it is the entrance is east, west, north, south. Now again, there will be the 4 directions. Yeah. Whenever any builder will plan or any person will plan a certain commercial space or a residential building, you will always have 4 entries: east, west, and north, south. Definitely. They may alter it to the sub-diagonal spaces like northeast, northwest, southeast, southwest, but mostly it will be east, west, north, south, right? The major ones, major directions. Now, east and north are the best directions that you can have. From east, you get the sunlight. So that's why you get the cosmic energy of the sun, and that's why your health becomes better. From north, you get the magnetic energy of the earth. So that's why your brain functions more better. You sleep in the south and your legs are towards north. So the magnetic energy of the earth enters your feet.
transfers throughout your body and gets accumulated, or it gets concentrated in your brain. And because of that, क्योंकि हमारे बॉडी में भी एक आयरन है, और इसी वजह से ये मैग्नेटिक एनर्जी ट्रांसफर होती है। और जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हैं, यू विल फील फ्रेश। और इसी वजह से आप जब भी अपने घर में बैठ रहे हैं, मेन एंट्री की तरफ देख रहे हैं जो कि उत्तर दिशा में है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी आपको अच्छी मिल रही है, इसलिए आप फोकस्ड हैं, अपना काम सही ढंग से कर सकते हैं। वहाँ पे मर्क्यूरी बुध ग्रह बैठे हुए हैं, सो इट विल गिव यू मार्केटिंग स्किल्स। आप किसी भी व्यक्ति को अच्छे से कन्विंस कर सकते हो कि मैं पर्टिकुलर बिजनेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या पर्टिकुलर जॉब में हूँ, तो आई वांट टू सेल दिस एट अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर पर्सन। तो कन्विंसिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये कुबेर स्थान है। उत्तर दिशा इज अ कुबेर स्थान, इट इज महालक्ष्मी का स्पेस। तो एक्चुअली उसके पीछे ये रीजंस हैं, इसलिए देवी देवताओं को एक पर्टिकुलर 81 की ग्रिड होती है, जिसमें 81 देवी देवता वहां पे विराजमान है, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग जोन्स में। और उसके अनुसार सब चीजें होती हैं। तो जब आपने ये मुझसे पूछा कि डायरेक्शंस, अच्छा ये क्वेश्चन आपके माइंड में क्यों आया, पहले आप ये पूछिए। It's a very common question because I know 2 years back, and when we were searching for the house, the main thing what we were first thing is we were finding is the entrance. Entrance अच्छा है कि नहीं, east में है, north में. That is a very common thing which people understand also. But what about if people are living in a south facing direction? So that's or why, ma'am, west? we are using Astro Vastu together. Why astrology we have taken together with Vastu? The reason is because आपके पास तो 4 ही डायरेक्शंस हैं, और चारों दिशाओं में कहीं ना कहीं फ्लैट्स आपको मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि साउथ वाला कभी जाएगा ही नहीं, वेस्ट वाला Yes, सेल that is होगा my ही point. Like what? So, what is the importance? Like we discuss the importance of east and north. So, what about south and west? So, people who already are in either office or in a house, if they are having that kind of entrance, what should they do, or what is the importance of that? See, whenever you have 4 different directions for house options, then first of all you should see east or north if it is available. Suppose it is not available, then you can come to us, or you can go to any other good consultant which does Astro Vastu together. Okay. अब जब ज्योतिष को इसके साथ में मिलाते हैं, तो फायदा ये होता है कि अगर मेन अर्निंग मेंबर की कुंडली में देख कर के अगर हमें पता है कि उसके लकी डायरेक्शंस में वेस्ट और साउथ भी सम्मिलित हैं, मतलब हम उसे चूज कर सकते हैं, तो हम उस व्यक्ति को उस तरह के घर को भी लेने के लिए प्रेरित करेंगे कि आप ले सकते हैं, आपके घर में कुछ गलत होने वाला नहीं है बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि साउथ को यमाची दिशा माना गया है, स्वयं यम देवता की दिशा माना गया है, और वहाँ से सचमुच इस तरह की ऊर्जाएं आती हैं जहाँ से लॉन्ग टर्म डिजीज घर में होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। या मिरर अगर इस दिशा में गलत तरीके से लगाया जाए, कुछ 15 डिग्रीज के एंगल पे लगाया जाए, तो घर में किसी न किसी व्यक्ति की अकस्मात डेथ बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो इसीलिए हम पहले चूज करते हैं कि ईस्ट और नॉर्थ होना चाहिए, पर वो नहीं हो पाता तो भी शास्त्रों में बहुत सारी रेमेडीज हैं जिनको हम दहलीज में, या उसका जो टोटल मेन डोर का फ्रेम है उसके अंदर वो पर्टिकुलर रेमेडीज करके उनको एक बेहतर जीवन दे सकते हैं। तो डरने की आवश्यकता नहीं है कि साउथ आ गया तो हम खत्म ही हो जाएंगे। अब तक का मेरा 30 वर्ष का जो अनुभव रहा है उसमें हमने बहुत सारा ऐसे कह सकते हैं कि रिसर्च किया है अलग अलग जगहों में, अलग अलग रेमेडीज का इस्तेमाल करके, कि बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आती हैं। कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं। आपके पास अगर ट्रायंगुलर बिल्डिंग है तो ट्रायंगुलर बिल्डिंग में ही आपको अगर फ्लैट समझ में आया है, आपको बाहर के लुक्स वगैरह या अंदर इंटीरियर में स्पेस ज़्यादा मिल रहा है, तो डेफिनेटली यू विल चूज दैट। लेकिन उसके बाद जब हमारा रोल आता है तो हम आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स के साथ मिलकर वहाँ पर कुछ ऐसे
आज के ज़माने के जो वॉर्टेक्स हैं, एनर्जी वॉर्टेक्स, वो लगाते हैं। कुछ पंचधातु में निर्मित पिरामिड्स का भी समटाइम्स वी यूज़ जेम थेरेपी, वी यूज़ क्रिस्टल थेरेपी, we use sacred geometries, we use essential aroma oils. There Okay. are too many things that can be used. यंत्रों का of course इस्तेमाल होता है. सो अगर वास्तु दोष है तो वो रेक्टिफाई हो सकता है. पूरा खत्म नहीं होगा, but rectify, yes. Okay. It can be rectified till 95%. So if you can give just one example of any rectification of any, as we were talking about the entrance, so we can just talk about the entrance. अगर कोई है ऐसे कि साउथ डायरेक्शन का है या तो वेस्ट डायरेक्शन का मैं आपको एंट्रेंस बताऊंगा. है. भांडुप में, भांडुप जो मुंबई का ही एक सबब है, वहाँ पर एक चौल में किसी ने स्टार्ट किया था अपना काम. दे वर मेकिंग द स्पोर्ट्स वेयर फॉर द स्कूल्स एंड कॉलेजेस. मतलब बेसिक से उन्होंने स्टार्ट, बट वेरी हार्ड वर्किंग पीपल. तो उन्होंने 2022 में सितंबर में हीरानंदानी पवाई, जो बहुत मशहूर लोकेशन है जहाँ पे रिच एंड द फेमस लोग रहते हैं, वहाँ पे उन्होंने फ्लैट खरीदा है. वो भी 8.5 करोड़ का. तो इज इट नॉट समथिंग वेरी वेरी पॉजिटिव? तो लेकिन दे वर वेरी हार्ड वर्किंग, नो डाउट अबाउट दैट. वो मेरे साथ 10 सालों से कनेक्टेड थे और आज भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं. उन्होंने जो 4 या 6 दुकानें ली थी रेंट आउट करके, जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अपनी डालते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, आज वो सभी दुकानें उनकी खुद की हैं. दे हैव एटलीस्ट 78 to 82 फ्रेंचाइजीज अक्रॉस इंडिया. उसके बाद 30,000 स्क्वायर फीट फैक्ट्री इन विक्रोली, अगेन अ सबब ऑफ मुंबई. ओनरशिप, तो आप सोचिए कि 10 years में कितना उनका ग्रो हुआ है. So that's because of their vastu. Yes, Vastu and astrology we both did. Of course, वो साईं बाबा के भक्त भी हैं. I would not say कि सब मेरी वजह से हुआ. I did it. No. It was their hard work. It was their belief in साईं. And I was guided by साईं. मैं तो ये बोलूँगा कि I was made a part of their journey towards success. So मैं एक निमित्त बन के आया. So what would you tell if people are listening to this, no? कि अगर कोई वास्तु टिप हो जिससे like success, prosperity, wealth आ सकती है, तो what can be the or remedies? some tips, yeah, not one, but I think there will be several tips, but at least if you can share some. सबसे अच्छे टिप्स शेयर करते हैं. पहले तो मनी है तो सब आता है, ठीक है. फिर उसके अंदर सुख शांति, कुछ रिलेशनशिप्स पे भी करेंगे. पहला जो है, अगर आपको बहुत सारा धन चाहिए, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा को, नॉर्थ ईस्ट सेक्टर को साफ सुथरा खाली रखिए. देखिए कि वहाँ पे किसी तरह का टॉयलेट सेक्शन वगैरह ना हो. अगर टॉयलेट सेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, या तो किसी अच्छे कंसल्टेंट को अपने यहाँ इनवाइट करके और उसका टोटल एनालिसिस करके और रेमेडीज करके, एंड डू योर वर्क वॉट एवर इट इज. यू विल सी द चेंजेस इन अ फ्यू मंथ्स. दूसरा तरीका है कि अगर आपके पास कुछ घर में पहले तो क्लटर है किसी तरीके का, क्लटर में कोई ऐसी चीज़ें जो आपने सोचा हो मैं कभी यूज़ करूँगी, कोई ऐसे बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन जो आपने सोचा हो मैं कभी ना कभी पढ़ूँगी जब मुझे समय मिलेगा. घर में कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे OTG, माइक्रोवेव ओवन, सम मोबाइल फोन, सम घड़ियां बंद पड़ी हुई, अगर ऐसी चीजें हैं तो these are all clutters. Remove it. Even the medicines, I've heard medicines who have Medicines expired, always expiry has date. yes, expiry So- date वाली medicines is a clutter. लेकिन अगर medicines भी आपने बाहर डिस्प्ले पे रखी तो आपके घर से बीमारी नहीं जाएगी. Put it in the drawers. प्रॉपर ड्रॉर्स. अपने शूज वगैरह एकदम नीट क्लीन करके पोंछ के अगर घर के अंदर रख रहे हैं तो एकदम उसके साथ साफ सुथरा करके रखना है. कबर्ड्स के नीचे आजकल मुंबई में और बहुत सारे कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में जो आपके बहुत महंगे वाले चप्पल और शूज होते हैं, वो कबर्ड के नीचे ही रखते हैं. प्लीज डोंट डू दैट. दैट इज ड्रेनिंग योर एनर्जी. आपका मनी लक चलता जाएगा. Okay. Oh, that's very interesting. यस, उनको एक अलग से स्थान है नॉर्थ वेस्ट में. उनके लिए आप एक शू रैक अच्छे से बनवाइए. वो भी कवर्ड होना चाहिए with the drawers. You can close it up and neatly clean it from तो time to शूज भी time. लोग बाहर रखते हैं, you know, just when we enter, like you place it in the passage or something, you know, हाँ, make a लेकिन box. That अगर is वो fine. covered है हाँ.
और वो किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं पड़ा है, नॉर्थ वेस्ट में है या आपके घर के बाहर है तो भी चलेगा, चलेगा. बट इट हैज टू बी कवर्ड. इट शुडंट बी लाइक स्प्रेड अप एवरीवेयर. Okay. वो नहीं होना चाहिए. तो आप जब घर के बाहर निकलते हो उसमें ही अगर आपने चाबी लगा के रखी है या कुछ कवरिंग है, उसको खोल के अपनी चप्पल शूज पहन के अपने काम पे निकल सकते हैं आप. Okay. Okay. तो दैट इज द बेस्ट मेथड. दूसरा है, अगर आपको बहुत सारा धन चाहिए तो ईशान्य कोण को, नॉर्थ ईस्ट सेक्टर को, नॉर्थ को खाली, खुला और महकदार रखिए. अब महकदार कैसे रखना है? आप एक अच्छी सी स्प्रे बॉटल ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा पानी भर दीजिए, उसके अंदर हीना अत्तर या गुलाब अत्तर की 5-6 बूंद डाल दीजिए. असली होना चाहिए. एरोमा एसेंशियल ऑयल्स में जितना प्योरिटी रहेगा उतना आपको अच्छा रिजल्ट्स आएगा. और उसके बाद इसे 3-4 बार नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में रोज स्प्रिंकल कीजिए और सिर्फ मन में एक पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए. या अगर आप माँ लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं तो उनका कोई फेवरेट मंत्र जो आपको ठीक लगे आप वो दोहराएं. मैं तो ये कहता हूँ कि मनी इज कमिंग टू मी मल्टीप्लाइड इन ऑल डायरेक्शंस एट ऑल टाइम्स ऑन ऑल लेवल्स Yeah, and in that's between interesting. times. So money is That's always nice. searching for me. तो आपको खुद देखना है कि मेरे लिए क्या चीज काम करती है. कोई स्विच वर्ड्स यूज करते हैं, कोई एनर्जी सर्कल्स यूज करते हैं, कोई जीजी कोड्स यूज करते हैं. तो इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो. Okay. तो आप अपने लिए कुछ भी पॉजिटिव, आप ऐसे नहीं कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है तो ये लक्ष्मी माता सुनेंगी, ऐसे कुछ नहीं है. आप संस्कृत में कहेंगी तो भी वो आपकी माँ है, आप हिंदी में बोलेंगी तो भी वो आपकी माँ है, या आपकी जो भी पर्टिकुलर मदर टंग है उसमें भी उनको पुकारेंगी तो शी इज ऑलवेज विथ यू. लेकिन वी हैव टू बी ओपन माइंडेड. Yeah. पहला रूल ये है कि सक्सेस अगर आपको पानी है तो डू योर कर्मा करेक्टली, यानी आपको मेहनत तो करनी है. चाहे वो हार्ड वर्क हो या स्मार्ट वर्क हो, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी. वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, दूसरे स्पिरिचुअल जो भी साइंसेस हैं, दे विल गिव यू द राइट पुश. आपके डेस्टिनी की ओर आपको बढ़ाएंगे जल्दी से. इट विल बी लाइक अ कैटलिस्ट इन द केमिकल रिएक्शन. तो अगर आपको फास्टर आउटपुट चाहिए आप इनकी मदद ले सकते हैं. इट्स अप टू यू. What about relationships in the house? You know, Relationship- sometimes relationships. आजकल There's no जैसे harmony. Gen Might Z- be because of like it does depend on the house vibes or yes. vastu. So how does that there affect? are two main directions in your house that governs your relationship, and there are few others which can really push your relationship to betterment. तो पहले दो मुख्य दिशाएं जो खराब आपके रिलेशंस कर सकती हैं वो है साउथ वेस्ट, Okay. यानी नैऋत्य दिशा, जिसे हम दक्षिण पश्चिम दिशा कहते हैं, साउथ वेस्ट. दूसरा है नॉर्थ वेस्ट जो वायव्य दिशा है, जिसे हम उत्तर पश्चिम दिशा कहते हैं. ये दोनों डायरेक्शंस आपकी रिलेशनशिप को गवर्न करती हैं. चाहे आपके हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन हो, चाहे आप अपने बच्चों के शादी के योग देख रहे हैं लेकिन उसके बावजूद नथिंग हैपेंस, या उन्हें कुछ लाइफ में ऐसे व्यक्ति टकरा रहे हैं जो उनकी जिंदगी खराब कर रहे हैं किसी भी वजह से. तो अगर रिलेशंस अच्छे करने हैं तो पहले साउथ वेस्ट ढूंढिए, नॉर्थ वेस्ट ढूंढिए. साउथ वेस्ट में क्रिस्टल्स, रोज क्वार्ट्ज 2 क्रिस्टल्स ले लीजिए, उनको अच्छे से नमक पानी के अंदर 1 घंटा रख दीजिए, उसको सनलाइट में रखिए मॉर्निंग में एनर्जाइज होने के लिए. या अगर आप हीलिंग कोई मोडालिटी जानते हैं, रेकी, प्राणिक, थीटा, मैग्नीफाइड, वो आप उसके ऊपर इस्तेमाल कीजिए. एंड रेड सैटिन रिबन से दोनों पेंसिल्स को अपने साथ में टाई अप कर दीजिए एंड डिस्प्ले इट इन द साउथ वेस्ट. वहां पे रख दीजिए. क्लींस दीज क्रिस्टल्स एवरी 15 डेज. एवरी 15 डेज के बाद फिर से आप क्रिस्टल्स रखोगे, फिर से अपने रिलेशन जिसके साथ आपको ठीक करना है, आपको ऐसा सोचना है कि एक क्रिस्टल ये पर्सन है, एक क्रिस्टल मैं पर्सन हूँ. Now we are tying them together in a relationship which is long lasting, which is having the mutual respect for each other, caring for each other. वो आपके ऊपर निर्भर करता है आपको क्या चाहिए. What are these crystals? क्रिस्टल्स आर द सेमी प्रेशियस स्टोन्स जो हमें खदानों से प्राप्त होते थे पहले. अभी तो बहुत सारे शॉप्स, मॉल्स, उसके बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, तो आपको कहीं से भी ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएंगे. Good. So this is for the relationship you're saying, हाँ, right? उसी तरह से नॉर्थ वेस्ट में आपको क्या करना है, आदम कद का एक अराउंड 6 फीट
height will be length will be around 6 feet and width will be 1 feet. ऐसे वाला आपको लगा देना है in the northwest sector, which is वायव्य कोण. अगर उसमें आप वो रखते हैं और उस पर आप एक रेड मार्कर पेन से लिखते हैं कि रिलेशनशिप with this person of this person is improving day by day from now. सिर्फ इतना लिख दीजिए and you will see how the magical results come. Wow, that's so nice. Very nice tip. But what are the other things that can, spoil a relationship? For example, I have heard that, having round dining tables, they are not good as per Vastu. They would affect a relationship. So, They how may far is that affect true? a relationship, but ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोल जो है धरती गोल है, planets गोल है, तो फिर हमारे relationships क्यों अच्छे होते हैं? सबके नहीं, कुछ लोगों के तो बहुत अच्छे होते हैं. I've seen कि आज भी चाहे हम कहें कि कलयुग आ गया, ये आ गया, वो आ गया, and Gen Z people are there, people don't tolerate each other. आज भी 10% couples are there जो एक दूसरे के साथ आज भी 20-25 सालों से रह रहे हैं, या न्यूली भी कुछ couples अभी की generation who are madly in love with each other, who respect each other, who care for each other genuinely. तो हो रहा है ना, ऐसे 10% भी तो हो रहा है. तो somewhere somehow these energies are there. पर हाँ, वैदिक वास्तुशास्त्र देखा जाए तो rectangular dining table is very good for you. Okay. The round one will not be that good for you. But Okay. it is not bad. It is not bad. Does it cause any Conflicts? conflicts? No, it doesn't. Oh, okay. It doesn't. And what's important is mirror then, because mirror also people say that you shouldn't, first of all, of course, when you sleep, where you sleep, you shouldn't have the mirror in front of you, or you shouldn't be seeing the mirror when you're sleeping. When you're sleeping, Yeah. whatever part of your body is reflected in the mirror, that will have disease in the long run. That is sure. Whatever part is reflected. For example, if I'm जैसे lying down and if I see my face, हाँ, then तो आपको आगे चल के अपने ब्रेन से संबंधित, आंखों से संबंधित, नोज से संबंधित, माउथ से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी जरूर आएगी. It may take time. For example, one of my friends who was a builder, he was having a huge bungalow, very beautifully crafted furniture and everything, very rich and the famous guy. लेकिन जब मैं उनके बेडरूम में गया तो बेडरूम के सब साइड वाले दीवार में सब मिरर्स. मैंने उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछा, हाउ इज योर हेल्थ? ही सेड, विजय भाई, एवरीथिंग इज सो गुड, लेकिन मेरी हेल्थ हमेशा खराब रहती है. आई एम ऑलवेज विजिटिंग द डॉक्टर्स. मैंने बोला, दिस इज द रीजन. I know mirrors सब have a मिरर्स very हटा दो, तुम्हारे बेड को रिफ्लेक्ट very नहीं करना significant चाहिए. mirror has, Yes, no, in the Vastu. मिरर्स पे कभी एक बार हम और बात करेंगे, बिकॉज फेंग शुई में देयर आर a lot of chapters on mirror because 15 डिग्री का एंगल में आपके घर में एक पर्टिकुलर लोकेशन में मिरर लग गया है, एक पर्टिकुलर जगह में लग गया, that can cause very big accidents in your house, that can have a threat into your life. There are so many things. लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, मतलब पॉडकास्ट में अगर हमें करना है तो we can do it in a separate section, because सिर्फ एक चीज से आप सब कुछ नहीं बोल सकते हैं. या मैं नहीं चाहता कि हमारे श्रोतागण जो हैं वो किसी वहम में पड़ के डर जाएं. आई वांट देम टू बी एजुकेटेड रादर देन बीइंग मिसगाइडेड. तो इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे मिरर लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है. उस पर रिसर्च वर्क भी है, हमारे शास्त्रों में भी विधि विधान लिखे हुए हैं. फेंग शुई में देयर इज अ पर्टिकुलर the whole thing only related with mirrors. कितनी दिशा पे कहाँ रखना है, कितने लेंथ पे रखना है, क्या अट्रैक्ट करेगा, क्या नेगेटिविटी उसमें जाएगी. अगर स्पिरिचुअलिटी में बहुत डीप जाओगे तो मिरर्स आर द पोर्टल्स टू अनदर डायमेंशन. तो बहुत ही अलग चीज है वो. और मिरर का एक मतलब ये भी है एंगल के यू कैन यूज द मिरर्स for increasing wealth. Yes. आप आपकी जो तिजोरी है पहले उसे आपको साउथ वेस्ट में रखना है, सो मनी आपके पास टिकेगा. उसका जो डोर है वो नॉर्थ की तरफ, उत्तर की ओर खुलना चाहिए. तो जब आप साउथ वेस्ट में रखेंगे, सो अलाइन दैट पर्टिकुलर अलमीरा और तिजोरी इन सच अ वे, और अ कबर्ड इन सच अ वे, सो दैट
द डोर ओपन्स टुवर्ड्स नॉर्थ, उत्तर की ओर खुले। अब उसमें जो आपकी तिजोरी है उसमें सब तरफ मिरर्स लगा दीजिए, एंड वॉट एवर मनी गोल्ड यू हैव पुट देयर वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा। अब रिफ्लेक्ट करेगा इसका मतलब ऐसे नहीं है कि एक में से दो नोट निकलेंगे, मैंने एक गड्डी रखी थी नोटों की तो दो निकलेंगी, इट्स नॉट दैट वे। इट्स लाइक कि आपके जीवन में वैसी अपॉर्चुनिटीज आप आकर्षित करोगे, यू विल अट्रैक्ट द राइट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज विच विल really develop your money in a few months or years. So is it not great? Yeah, is it? So that means that is what, no, people should have that kind of understanding Yes. where the mirror should be Yes, placed in the yes, right way, yes. so that they can also attract, a lot of Bilkul. possibilities Correct. and success. Oh, what is this reason that people staying in the house for many years, they had a good time, and suddenly there is a downfall? So how will you relate Vastu to this? See, when people are living in this house for the so many long years, it doesn't mean that the Vastu dosha was not there. It may be existing from that particular time. Okay. But the only thing is a particular dasha, as per the Lagna chart or the Mahadasha, the dasha may be favorable at that particular time. And when that another graha has entered or the other dasha has started which is not conducive to that particular person's chart, so then the downfall will be visible. The Okay. bad effects will be more clearer. जैसे आप ऐसे मान लो कि कहीं पे बम रखा हुआ है, वो कब फटेगा हमें पता नहीं है, Okay. तो वो वास्तु दोषा भी उसी तरह से है कि उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आपके ऊपर कभी भी हावी हो सकते हैं, लेकिन तब होंगे जब आपके ग्रह खराब चल रहे होंगे, तब उसका बैड इफेक्ट ज्यादा दिखेगा, विजिबल होगा, यू कैन सी इट। Okay, so Vastu and astrology, if you combine and if you check in that way, then you understand the reason also why it's not working right now, why it was working previously. Because Astro Vastu is a concept where both sciences help each other to understand the basic or the root cause of the problem, और उसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं वो भी वहाँ से ही हमें पता चलता है। So how is it that people, there are so many people like family members in the house. So for one of the family member that might not be good, the Vastu of the house. For other, it could be good. Or one would be having a good dasha, Wonderful. other would be not having Wonderful so question. good dasha. अर्पिता जी, तो ये ऐसे है कि एक घर में हर व्यक्ति के ग्रह तो अलग अलग होंगे और one direction may not be okay for others, Yeah. or may not be favorable for others. Now what we try to do is we take the charts of all the people, Okay. all the family members. We see that most of the people have a particular direction as a one of the luckiest. We make sure that at least that direction is average for them. It is not bad for them. Okay. So bad, we will never be telling them to move on to that particular house if we are going for astro vastu. अगर मुझे पता ही नहीं है, मुझे सिर्फ वास्तु करना है, and they are saying oh, we are okay only just with vastu, we do not want to go for astro vastu, मैं बाकी लोगों के चार्ट्स देखूंगा ही नहीं। पर जब मुझे पता है, मैं पहले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एस्ट्रो वास्तु को साथ में लें, उसके बाद ही आप बुकिंग करें अगर नया प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो। पर अगर मुझे पता चला कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति का ये ग्रह खराब है, तो फिर मैं उसको ऐसा घर में लोकेशन दूंगा, उसका कमरे का लोकेशन, कि उसमें सोने के बाद एटलीस्ट उसको जो बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं वो बहुत कम हो जाए। Okay. क्योंकि बड़े बड़े योगी संत महात्मा भी अपने कर्मों में से निकल नहीं सके हैं, उनको जो पिछले जन्मों का जो भी कर्माज होगा वो तो हर किसी को भुगतना ही होता है। एस्ट्रोलॉजी में यही होता है कि हम आपके अच्छे ग्रहों को और बेटर बनाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग उपायों से, रिचुअल से, पूजा पाठ से, दान धर्म से, किसी तरह के जेमस्टोन से, और जो नेगेटिव पड़े हैं उनके बैड इफेक्ट्स को कम करते हैं। So it is recommended कि अगर आप एस्ट्रो वास्तु दोनों साथ में करें बहुत अच्छे तो you will get a very good फास्टर result. रिजल्ट्स आते हैं बहुत ज्यादा। So why do you think now there's new construction somewhere going on? The architect comes to you.
So, what is the reason and what do you see in that to आजकल give a good आजकल vastu? दिन ब दिन देखिए, ये है तो 5000 वर्ष पुराना शास्त्र, Hmm. ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हिस्टोरिकल फोर्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, राजा महाराजाओं के किले जो भी हैं, वो उन्हीं तरह से बने हुए हैं, वास्तु के सिद्धांतों पे ही बने हुए हैं। बहुत सारे जो प्राचीन हमारे मंदिर हैं, वो भी वास्तु के नकाशी, उनके जो अलग अलग स्टोन्स पर यंत्रों को काव करके वहां पे रखा गया है। इवन जो मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वो भी ऐसे जगह में उनको स्थापित किया गया है, मूर्तियों को, जहां पर उनके गर्भगृह की जो डिजाइन है वो है एज पर वास्तु। वहां पे जो मूर्ति स्थापित है, उसके नीचे यंत्रों को जो उत्कीर्ण किया गया है, काव किया गया है इनटू दैट पर्टिकुलर मार्बल और अ पर्टिकुलर पंचधातु और अ मेटल और अ गोल्ड जो भी है, तो वो करके उसके बाद ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके उस देवी देवता को वहां पे विराजमान किया गया है। और उनकी तो आप देख ही रहे हैं कि कहीं पे क्रोर्स ऑफ Yeah. जो है डोनेशंस लोग दे रहे हैं। उसकी महिमा कुछ अलग ही है, उसके एक्सपीरियंसेस कुछ अलग ही हैं। जब व्यक्ति वहाँ पे दर्शन करता है उस पर्टिकुलर मूर्ति की, तो उसको खुद ही लगता है कि जैसे साक्षात ईश्वर हमारे सामने बैठे हुए हैं और हमारे प्रॉब्लम्स सचमुच सॉल्व हो रहे हैं। तो ये सब वास्तुशास्त्र और अलग अलग वेद शास्त्रों को इकट्ठा करके और हमारे सनातन धर्म के हिसाब से इसे अगर सही ढंग से अप्लाई किया जाए तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अभी हम आते हैं आपके आर्किटेक्चर के क्वेश्चन पे। तो प्रीवियसली आर्किटेक्ट्स यूज्ड टू डू दिस। धीरे धीरे अवेयरनेस फिर से आ रहा है, क्योंकि उसके बाद कुछ समय तक मे बी आर्किटेक्ट्स बहुत बिजी हो गए और वास्तु अप्लाई नहीं कर पाए। तो जहाँ पे भी कहीं त्रिकोण प्लॉट मिल गया, कहीं गोलाकार मिल गया, कहीं पे चौकोर या स्क्वायर पीस मिला, रेक्टेंगुलर शेप मिला, या कोई बहुत ही डिफरेंट जिसके शेप को हम डिस्क्राइब भी नहीं कर सकें, इस तरह का कोई शेप था, उसकी सिमेट्री नहीं होती है, उसके अंदर एनर्जी मूवमेंट प्रॉपर नहीं होती है, उसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसकी वजह से उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। आजकल आर्किटेक्ट्स के पास में वास्तु, वो हमें कांटेक्ट इसीलिए करते हैं ताकि उनके प्रोजेक्ट्स वास्तु कंप्लायंट हो सके। 100% कंप्लायंसी नॉट पॉसिबल, लेकिन अगर वो 60% भी उसे कंप्लायंट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल द मेन स्ट्रक्चर, मेन बिल्डिंग अगर उनका वेस्ट साउथ वेस्ट में बना हुआ है, the main entrance for the parking lot and the main entrance of the building is towards the east or north, या अंदर suppose they give a swimming pool, so that has to be in the open sectors of north or northeast. So swimming pool water feature is given over there. फिर उसके बाद में electrical appliances like the generators or the light fittings is in the southeast, आग्नेय दिशा में। तो इस तरह की कुछ चीज़ें की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल द क्लब हाउस, द एमिनिटीज़, अगर उन एमिनिटीज़ को प्रॉपरली हम प्लेस करें तो 60% कंप्लायंसी के ऊपर चला जाता है वो जगह। और उनके प्लिंथ में भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम आजकल आर्किटेक्ट्स और बिल्डर्स हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे कंप्लायंसी में जितना कुछ कर सकें उतना कीजिए, ताकि वास्तु कंप्लायंट भी हो, साथ ही साथ हमारा जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो जल्द से जल्द बिक जाए। तो इसके वजह से वो अपनी रेमेडीज भी आजकल बहुत Of course, कराते हैं everybody, बिल्डर्स, yeah. या बिकॉज वो चाहते हैं जैसे ही मेरा बिल्डिंग कंप्लीट होने के कगार पे हो तो मेरा सभी फ्लैट्स बिक जाने चाहिए। सो दैट्स व्हाई दे अप्रोच अस। So what about interior designers then? You know, when they come to you, and for example, if you find that their plot, I mean the design, is not according to Vastu, then how do you do changes to them? Previous times when I started Vastu newly, when there was no much awareness, matlab few people knew, but there was no much awareness about Vastu. At that time, many interior designers used to brush it off, like वास्तु तो कुछ होता ही नहीं है। अब उन्हें पता है कि वास्तु से क्या बेनिफिट्स हैं। यहाँ तक कि आजकल इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स पहले बोलते हैं बॉस मेरे घर का वास्तु कर लो, मेरे ऑफिस का वास्तु कर लो, सो दैट आई अट्रैक्ट मोर मनी, अबंडेंस एंड गुड थिंग्स इन माय लाइफ। उसके बाद हम प्रोजेक्ट करेंगे। तो देयर इज अ डिफरेंस
इन द ओपिनियन ऑफ द पीपल विद द टाइम, क्योंकि अगर सही वास्तु कंसल्टेंट्स, जैसे आई एम इनटू ट्रेनिंग, आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स अक्रॉस द ग्लोब, तो मैं जब उनको सिखाता हूँ तो पहले ये कहता हूँ कि आप पहले अपने आप को, अपने घर को ठीक करो, अपने ग्रहों को ठीक करो, फिर दूसरों के लिए काम कीजिए एंड डू सम रिसर्च वर्क। ऐसे नहीं कि आज आपने कोर्स पूरा किया, मुझसे सीखा वास्तुशास्त्र या ज्योतिष, और नेक्स्ट दिन आपने अपना विजिटिंग कार्ड बना लिया, अपना सब जगह में आपने लिखा है नाउ अ कंसल्टेंट, आओ अभी मेरे पास कंसल्टेशन के लिए। नो, डू सर्टेन रिसर्च, सर्टेन थेरेपीज, यूज फॉर योरसेल्फ, अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाइए, अपने ग्रहों को अच्छा कीजिए, अपने घर वालों के साथ रिलेशन बढ़िया बनाइए, अपनी बीमारियों से बाहर निकलिए। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लोगों को फ्री में देते रहिए कि आप ये करके देखो, आप ये करके देखो, सी वॉट ब्यूटिफुल चेंजेस यू आर गेटिंग। थोड़ा नॉलेज लीजिए कुछ महीनों तक, जस्ट डू द ट्रायल एंड एरर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गलत कुछ सलाह दे दें, तो उससे उसका बुरा भी हो सकता है। सो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट प्रॉपरली, उसको अप्लाई कीजिए सही ढंग से एंड सी हाउ द लाइफ ट्रांसफॉर्म्स टू बेटर। तो सिर्फ आप अपना ही नहीं, एटलीस्ट आपको लोगों की दुआएं तो मिलेंगी, पैसा तो मिलेगा ही। क्लाइंट्स विल गिव यू द फीस जो आप चाहते हैं, उसकी तो कोई लिमिटेशंस ही नहीं है, राइट फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एनीथिंग कैन बी चार्ज। लेकिन आप उसके लायक बनिए और जीवन को लोगों के चेंज कीजिए फॉर द बेटर। उनको गिराइए मत, उनके लिए कोई एरर्स आप नहीं कर सकते हैं। आप एक बार, दो बार, तीन बार, पहले जब आप न्यू हैं तब आपको काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने ही 25 से 30 वास्तु कंसल्टेंट से वास्तु सीखा था, ग्रैंड बड़े बड़े मास्टर्स से। लेकिन वो हमेशा यही बोलते थे, राइट फ्रॉम साउथ इंडिया, आई स्पेंड 2 years इन साउथ इंडिया, अरबकोटई एंड तेनी near Madurai, and did my all training in Tamil and Telugu. I didn't know the languages. I took the help of a translator. They were Gurukul style of learning. तो मैंने उनसे इस तरह से मैंने स्टडी करी है। तो जब आपको, अगर आपका स्पिरिचुअल कॉल मिलता है ना, तो वो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू विल नेवर गो नीदर हियर नॉर देयर। और वो जब गुरु के सानिध्य में, करेक्ट गुरु के सानिध्य में आप सीखोगे, इसको सिर्फ एक वर्कशॉप की तरह ना ले, इसको एक अध्यात्म की तरह ले, एक साधना की तरह अगर आप लेते हैं एंड चैलेंजेस को अपने जीवन में पहले ठीक करते हैं, अपने नियर एंड डियर वंस, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उनका भला करते हैं, उसके बाद आप बोलो कि नाउ आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट, अब मैं ज्योतिषी हूँ और अभी आप मेरे पास आ सकते हैं। क्योंकि आपने देखा कि डिफरेंस इज हैपनिंग। मैंने 4.5 साल लोगों को फ्री टिप्स दिए थे, 4.5 साल। मैं आना ही नहीं चाहता था इस फील्ड में एज अ कंसल्टेंट, लेकिन फिर देन व्हेन इट हैपेंड, लाइक विद द टाइम, द ग्रेजुअल चेंजेस मैंने देखा, हर किसी के जीवन में बहुत ही कुछ बेहतरीन चीजें हो रही हैं। सो देन आई सेड आई हैव अराइव्ड नाउ। Good. I've heard a lot about geopathic stress. Can you throw light on this? यस मैम। जियोपैथिक स्ट्रेस का मतलब होता है कि धरती के अंदर कुछ ऐसे खनिज पदार्थ होते हैं, ऐसी कुछ ले लाइंस होती हैं, वाटर लाइंस होती हैं, ऐसे कुछ इलेक्ट्रिकल करंट्स पास होते हैं जो आपके ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर आपके आसपास हो सकता है जिसके वजह से ये स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। अब ये स्ट्रेस जानने के लिए आजकल हमारे पास में ऑरा स्कैनर होता है एंड लेकर एंटीना। दीज टू गैजेट्स आर वेरी गुड एट मेजरिंग द जियोपैथिक स्ट्रेस। धरती आपके जीवन पर एक स्ट्रेस कंटिन्यूअस पुल करती है, चाहे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ हो, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ हो, मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द अर्थ हो। ये सब चीजें आपके ऊपर कुछ ऊर्जाएं फेंकती रहती हैं कंटिन्यूअस। अब आप देख लो ना कि अगर हम कहते हैं कि हजारों लाखों किलोमीटर दूर हमारे से प्लैनेट हैं, फिर भी हम ज्योतिष को मान रहे हैं, राइट? वो हमारे ऊपर एनर्जीज कंटिन्यूअस बम्बार्ड कर रही हैं। यूनिवर्स में भी ग्रह चेंज होते रहते हैं विद द टाइम। अमावस्या को, पूर्णिमा को आप किसी भी एनिमल प्लैनेट या इस तरह के शोज देख लीजिए, उसमें यही प्रूवन है, साइंटिस्ट ने प्रूव किया है ऑफ कोर्स, कि उनका भी बिहेवियर चेंज होता है। कभी वो बहुत ही सौम्य हो जाते हैं, कभी बहुत ही उनका जो गुस्सा वगैरह है वो चरम सीमा पे चला जाता है। दे बिहेव वेरी वियर्डली।
तो जब चंद्रमा से इतना कुछ हो सकता है तो बाकी ग्रहों से तो बहुत कुछ हो सकता है। और Okay. जिस प्लैनेट पर हम रह रहे हैं, दैट इज अ ह्यूज मैग्नेट इन इटसेल्फ, मदर अर्थ। तो उसका तो हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो हमारा रिलेशंस हो, हमारा हेल्थ हो, वेल्थ हो, मनी हो, गुड लक हो, बिजनेस लक हो, जॉब में लक हो, करियर ग्रोथ हो, तो इन सब पर हमारे So ऊपर बहुत this ज्यादा is प्रभाव। geopathic stress is also like related to Vastu. It is when you do the Vastu of a इट house, इज do you रिलेटेड विद also? द एनर्जी, पर इसको हम वास्तु से बहुत ज्यादा जोड़ कर देख सकते हैं क्योंकि ये कंसेप्ट आया है फ्रॉम जर्मनी एंड फ्रांस। लेकर एंटीना इज ऑल्सो वाइडली यूज्ड इन फ्रांस एंड जर्मनी बिकॉज इट इज अ साइंटिफिक टूल जिसके ऊपर अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जिससे आपको पता चलता है कि वहां पर किस तरह की ऊर्जा है। उन्होंने उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, पैरानॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स ऑल्सो, जिससे पता चले कि वो एनर्जी कैसे काम कर रही है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे क्या है। वहां पे तो ये भी पता चल सकता है कि गोस्ट है या नहीं है, Yeah, या वो correct. जगह हॉन्टेड है या नहीं है, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी उन्होंने फिक्स करके रखी हुई है। सो धीरे धीरे साइंटिफिक नॉलेज को वैदिक वास्तुशास्त्र के साथ अगर मिक्स करके इस्तेमाल किया जाए तो उसके बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। So nice. और उसमें जो रेमेडीज हैं, जैसे जियोपैथिक स्ट्रेस है, जियोपैथिक स्ट्रेस रॉड्स आर देयर आर मैनी जियोपैथिक स्टड्स कहा जाता है जो कटिंग्स के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके यहाँ पे अगर कहीं पे कोई नेगेटिव दिशा में, जैसे साउथ वेस्ट कर्जे वाला स्थान होता है, तो साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड है तो आपके जीवन में ज्यादा लोन्स एंड कर्जे हो सकते हैं। तो वहां पर अगर हम स्टड्स फिक्स कर देते हैं तो दे विल कट दैट नेगेटिव एनर्जी। हमने उस पोर्शन को फिजिकली तोड़ा नहीं है, लेकिन स्टड्स को वहां पे अगर हमने इंस्टॉल कर दिया तो नेगेटिव विल बी स्टॉप्ड। जियोपैथिक स्ट्रेस रॉड, जहाँ पे आपका टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में बैठा है, उसके जो चौखाट है टॉयलेट सेक्शन की, वहां पे अगर आप कुछ कट दे करके टाइलिंग में और उसके अंदर डाल देते हैं, या उस फ्रेम में कहीं पे वो जियोपैथिक स्ट्रेस रॉड इंसर्ट कर देते हैं, तो वहां का नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट ही नहीं करेगा। दैट कैन यू कैन मेजर इमीडिएटली। आपने वो इंस्टॉल किया, फिर से ऑरा स्कैन करो, यू विल immediately see a wide change. Energy पहले बंद था, now it is opened up. So nice. Tell me one or two tips. I know you have given me so many tips. You have Thank given you. all of us. So one tip, what the audience would love to hear to increase that positivity in the house, because if मैं there is आपको positivity, of course. मैं आपको 5 टिप्स देता हूँ। Yeah, please. अपने घर में संडे के दिन नमक पानी का पोछा लगवाइए। Only नमक Sunday? सेंधा नमक, ओनली संडे, Okay. ओनली संडेज, नॉट ऑल द डेज। सेंधा नमक का पानी से पोछा लगवाइए फॉर अराउंड 3 months। Okay. उसके बाद महीने में सिर्फ एक बार, एनी संडे यू चूज। First tip is this will clear all the negative and dormant energies that are within your house, चाहे वो किसी रिलेटिव की नेगेटिविटी हो। दूसरा, मिरर्स को हमेशा नमक पानी से क्लीन करके न्यूज़पेपर से क्लीन करवाइए, चाहे वो आपके मेड से करवाएं, आप खुद करें, लेकिन ये होना चाहिए हर 15 दिन में। जो भी व्यक्ति आपके घर में आता है वो हमेशा अच्छे इंटेंशन से नहीं आता है। अगर वो देख रहा है कि आपने अच्छा खासा पैसा कमाया है, यू आर बिकमिंग सक्सेसफुल, तो नेगेटिव एनर्जी उसमें जाके अटक जाती है। उसे रिलीज करना बहुत आवश्यक है, इसलिए उसे 15 डेज में क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये दोनों टिप्स क्लियरेंस के लिए थी। अब मनी को आकर्षित करने के लिए नॉर्थ सेक्टर में कांच की बॉटल ले लीजिए, उसके अंदर मनी प्लांट लगाकर इस दिशा में कहीं पे भी धरती से 3.5 फीट ऊपर इंस्टॉल कर दीजिए कैसे भी, और रोज उसका पानी चेंज कीजिए। 3 महीने में आप देखिए कि आपके मनी लक में क्या इंप्रूवमेंट आई, क्या अपॉर्चुनिटीज आपके बिजनेस में आपको आई। तीसरा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ईशान्य को और नॉर्थ को खाली खुला रखिए और वहां पे आप स्प्रिंकल कीजिए कोई भी एरोमा ऑयल, खास करके जैसे हीना अत्तर है या गुलाब अत्तर है, तो इससे आपके घर में बरकत बनी रहती है। चौथा, सबसे बड़ा यंत्र राज श्री यंत्र है,
श्री यंत्र को अपने घर में या अपने मंदिर में स्थान दीजिए, अच्छे से उसको फ्रेम करके रखिए, कॉपर में बना के या पंचधातु में बनाकर इसे अपने घर में शुक्रवार के दिन लाइए। माँ लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की आराधना कीजिए, माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना करें या अपने पंडित जी से करवाइए और उसे अपने ईशान्य कोण में या अपने मंदिर में स्थापना करें और रोज सिर्फ धूप दीप से उसकी आराधना करते रहिए। आप देखेंगे कि आपके घर में मनी, सुख शांति, पैसा, ऐश्वर्य सब धीरे धीरे वापस लौट कर आएगा। जिसके लिए आपने सोचा था कभी कि मेरे घर में पहले तो बहुत अच्छी बरकत होती थी, पहले तो बहुत खुशियां होती थी, हम्म, सडनली कुछ ना कुछ हुआ है। अगर आपको चाहिए कि आपके रिलेशंस भी अच्छे हों, शनि जी शनि जी की हम्म, भी कृपा आपको चाहिए, आपको मनी लक अच्छा चाहिए, आपको अच्छा जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन बहुत प्रयत्न करने के बावजूद आपको अच्छी जॉब नहीं प्राप्त होती या मनी लक आपको सपोर्ट नहीं करता, तब आपको क्या करना है? शनिवार के दिन 5 अपंग भिखारियों को, हैंडीकैप पर्सन्स और वेरी पुअर पीपल हु नीड हेल्प, उनको आप फूड पैकेट्स दान करें। अभी फूड पैकेट्स क्या होगा? तली हुई स्पाइसी चीज़, चीज तली चीज हुई कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल समोसा हो गए, भजिए हो गए, वड़ा पाव हो गया, ऐसी कोई भी तली हुई स्पाइसी चीज़ की दान करें। ये कंटिन्यूस करना है, एक बार नहीं, लाइफ लॉन्ग करना है, एंड यू विल सी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स, यू विल अट्रैक्ट मनी। बहुत सारी नेगेटिविटी आपके घर से, आपके पर्सनल स्पेस से चली जाएगी। अगर आपको कोई परेशानी है, आपको हम्म, उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो कुछ हफ्तों में वो भी आपको खुद ही क्लिक होगा कि हम्म, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। या कोई व्यक्ति आपसे टकरा जाएगा, या हो सकता है कि आप मेरे पास पहुंच जाएं एज अ कंसल्टेंट एंड आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। यू यू नेवर नो कि yeah, अपॉर्चुनिटी में कम फ्रॉम एनीवेयर। yeah, तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो beautiful दीज आर tips. 4-5 टिप्स दैट यू शुड, और Yeah. सभी अगर करते हैं, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो मेरी गुजारिश है एक बार करके देखिए, कुछ महीनों तक कीजिए, यू विल सी ब्यूटीफul चेंजेस इन योर लाइफ। Definitely, definitely. I think this is a really takeaway for all the audience. Really, very nice. Now, I want to have a rapid fire round with थैंक यू। you. Okay, so let's start this rapid fire round. Okay, so I want to know about horses in the paintings that people have that horses. I think 7 or 8 horses. Should it be facing in or out? इट शुड बी फेसिंग इन, Hmm. नॉट आउट, बिकॉज दीज आर द अपॉर्चुनिटीज जो Yeah. आपके घर में आनी चाहिए, आपके ऑफिस में आनी चाहिए, आपके फैक्ट्री में आनी चाहिए। ये हमेशा आपके बैक ड्रॉप में होनी चाहिए, इन द ऑफिस सेक्टर। Hmm. और आपके घर में साउथ वाली दिशा में अगर आप लिविंग स्पेस में लगाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। Okay. Cash placement, northeast or southwest? साउथ वेस्ट इज द फर्स्ट वन, Hmm. सेकंड इज नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। Okay. Okay, main door favorable. I think we have talked about it. North or east? नॉर्थ विल बी द फर्स्ट वन। इफ यू वांट गुड हेल्थ देन गो फॉर ईस्ट। Okay. Mirror opposite the entrance. Okay or not? It depends. If it is towards the north and east, so mirror opposite the entrance will also be like double money luck or double health luck. Oh, okay. So it depends how it is placed. Is it exactly there? Is it at some angle? Or is it a little bit here and there? That can be after the analysis. Okay. Waterfall. In which direction best? Waterfall in north, going towards northeast. Okay. Today we have learned really a lot from you, sir, and I really appreciate the Vastu tips and the remedies that you have shared. I'm sure the audience also will understand the importance of Vastu. I myself didn't know how Vastu can be so relevant, in every area of your life. And I really am very obliged that the knowledge that you have given us, I'm sure that we will have you again on another podcast Thank you so to much. continue this The on the pleasure is Vastu mine. subject. Thank you so much for being here. It was great pleasure. Namah Shivaya. Thank you.